भाई इस होटल में मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हुआ है अभी। पूरी कहानी बताता हूँ, बट फिलहाल चलता हूँ यहाँ से। मैं बहुत जल्दी चेकआउट कर रहा हूँ। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। मुझे मेरा चेकआउट टाइम 12 बजे अलाउड था, बट मैं जल्दी चेकआउट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हो गया है रिसेप्शनिस्ट से झगड़ा। अब क्या कहानी है मैं आपको नीचे जाकर बताता हूँ। मेरा हॉस्टल वाले से बहुत बहस हो गया यार, बहुत ज़्यादा बहस हो गया। दिमाग खराब करता है, बोलता पुलिस बुलाऊंगा। मतलब बोला भाई तू पुलिस बुला, आर्मी बुला, मैं देखता हूँ आज में क्या हो जाएगा। लेकिन अभी अभी गायब हो गया है। इतना मतलब सुबह की शुरुआत इतना ख़राब कर दिया ना इसने। इसके जो पापा हैं, मतलब इस हॉस्टल में इस एक 74 ईयर्स के आदमी हैं। वो रिसेप्शनिस्ट के पापा हैं। बहुत अच्छे, सुबह से मुझे इतना अच्छा ट्रीट किया। मैं अपने पापा से बात कर रहा फ़ोन पे, तो बोल रहे बाबा बाबा। मतलब हाँ बाबा, तो बैठ के अच्छे से बात किया। बट इसका बेटा इतना बेकार है ना, कोई है ही नहीं यहाँ पर। मैं निकल गया भाई। 4 घंटे मेरे बर्बाद हो गए। मतलब 4 घंटे के पास टाइम था। मुझे जाना है यहाँ से अभी गोरे में। मेरी बस शाम को है, शाम को। बट ये एक्सपीरियंस के साथ मतलब नहीं आ रहने का भाई। अब मुझे मेरा बचाव मतलब ऑलमोस्ट हाफ डे, मतलब हाफ क्या, 6 से 8 घंटा बस टर्मिनल पे निकलना पड़ेगा। बता तो पूरी कहानी कैसा है। मैं तो गया था लड़ने भाई कि आज जो जगह देख लेंगे, बट वो आदमी निकल गया था ही नहीं वहाँ पर। ओ वो देखो हॉट एयर बलून। So And you've been to which part of India? yeah, and I started from India and I drove back to Belgium. Oh wow, this was 15 years ago. From 10 years ago, I bought there an Indian motorbike. Yeah. So you understand? Yeah, maybe. Because they are the cheapest in your country. Yes. And I arrived in Netherlands and they say, your motorbike you can't drive with this because it was not European certificated. Right. Say, what did I do? Royal Enfield. Royal Enfield India contacted Royal Enfield Europe, and I get in Europe a brand new motorbike for free from Royal Enfield. And they took my motorbike that I bought in India and they put it in a museum in the Netherlands. Oh wow. I said I did adore it. A lovely country, beautiful people, sympathetic people. Yeah. I said I met a lot of their amazing people. I don't understand why they put your country so in another way and you don't deserve it. I agree. I say you don't deserve it. Politics make so. It's all about politics. Yes. My plan is I'm going to Goreme by bus, okay? Yes. But I hitchhiked from Istanbul to Çanakkale. Yeah. So from after Goreme, I'm hitchhiking to Trabzon, then to Georgia, Armenia, Iran, back to Armenia, Georgia, Russia, Mongolia, China. I'm going back to India. A friend. I'm all by hitchhiking. Oh. So Look, if you are searching for Georgia, come I give you my number. Because I work with the company in Georgia. Okay. You have problems, you contact me and I contact them to help you. Oh, thank you. Keep it just as a backup. In here also. Okay. Keep it as backup number. Always welcome to help you. Like I say, in your country people help me. And I learned to help people from other countries as well. Thank you. Don't think sales, okay? Okay. Forget that here. It's just pure friendship that I give you, that you do it, that you... Are you filming? Yeah, I'm filming. Nice. Hi, guys. Like I said, there is nothing financial behind it. It's just pure friendship. Yes. I've been young myself. I did travels myself. Yeah. And it's nice to have a backup. Right. एक वो एक्सपीरियंस हुआ और एक ये एक्सपीरियंस। एक पामुकले बस कंपनी है, वो बस कंपनी के शायद यहाँ पर वो संभाल रहे हैं यहाँ पर। ये बोलते कि 10-15 साल पहले मैंने इंडिया से बेल्जियम तक, मैंने इंडिया से यूरोप तक ये किया था, मोटर बाइक ट्रिप किया रॉयल एनफील्ड पे। बट बिकॉज परमिट नहीं था, रॉयल एनफील्ड इंडिया ने रॉयल एनफील्ड नेदरलैंड को कांटेक्ट किया और उन्होंने इनको नया बाइक दे दिया और इनकी बाइक को म्यूज़ियम में रख लिया। और ये इंडिया वालों इतनी तारीफ कर रहे थे। हाँ यही होता है यार, मिक्स एक्सपीरियंस होता है।
तो हुआ ये कि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया और ये बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद बोलते ठीक है, मतलब शुरुआत से मेरे साथ बैठे हैं लेकिन बाद में बोलते कि नहीं ब्रेकफास्ट का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब क्यों भाई? बोलते नहीं आप हमारे में बात नहीं हुई थी, ये नहीं हुई थी। मेरा भाई पहली बात तो मैं यहाँ पर तेरे से डायरेक्ट बुक किया हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा डिस्काउंट चाहिए था, तो मैं ऑनलाइन बुक कर सकता था। देख पहली बात तो मेरे पास कैश बहुत कम था, तो मैं ऑनलाइन बुक करना प्रीफर करता बिकॉज पेमेंट मेरे क्रेडिट कार्ड से जाता और इससे मेरे पास कुछ टर्किश लीरा बच जाते। मैंने नेगोशिएट किया, बात किया, उसने कहा कि ऑनलाइन बुक मत करो, मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। बात करते करते हुआ कुछ 120 टर्किश लीरा में और वो बोले कि ठीक है आई विल इंक्लूड ब्रेकफास्ट। इस तरह से हम नेगोशिएट किए और बिकॉज कैसा होता है कि वो उसने मुझे कहा कि ऑनलाइन बुक मत करना बिकॉज होता ये है कि जब हम ऑनलाइन बुक करते हैं जो बुकिंग प्लेटफॉर्म थोड़ा कमीशन लेता है, तो वो उसको बचाने के लिए शायद इसने कहा ठीक है। और वो बोलता है भाई पैसा भरना पड़ेगा। मेरा भाई मैं तो नहीं भरने वाला। बहुत बहस हुई, बोलता है कि मैं बिज़ी हूँ। मेरा भाई तू रिसेप्शन में बैठा है, तेरा काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना। बिज़ी है इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व कर। बोलता है पुलिस बुलाना। मेरा भाई तू पुलिस बोला, आर्मी बोला, मैं इधर ही बैठा हूँ, आज देखते हैं जो हो जाएगा हो जाएगा। ठीक से बहस हुआ और आते थे ये भाई मिल गए, ये इतने अच्छे। इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, बोला कि जॉर्जिया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ कुछ भी हुआ तो मुझे कांटेक्ट करना। मेरा वहाँ पे एक टूर कंपनी है, इसको कमर्शियली मत लेना, कोई सेल्स नहीं है, बट कुछ इमरजेंसी हुआ तो वो लोग हेल्प कर देंगे। और ये एक एक्सपीरियंस हुआ, एक ही समय पे दो मिक्स्ड एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक बुरा, क्या बोलूँ मैं। एनीवेज अब चलते हैं डेनिसले बस टर्मिनल। तो बस टर्मिनल में पहुँच गया हूँ। मैंने एक लाल कलर का लोगो था, मैं वो बस को ढूंढ रहा हूँ। बताता हूँ अभी। ये भाई पीछे पड़े हैं, ये पीछे पड़े, हमसे बुक कर ले। गोरे में हाउ मच? ओके ओके, डायरेक्ट गोरे में। ओके एंड हाउ मच फॉर दिस? 1150. Camel coach 25. Camel coach 125. Camel coach 125. Baltistan 100. I'm 100. No 100. No, okay. तो कामिल कोच मुझे 125 में दे रहा था, ये भाई मुझे 150 में दे रहे थे। भाई चांस ही नहीं है। वो लाल लोगो था, उसका नाम समथिंग बल्तिस्तान, लीडर बल्तिस्तान था। अभी वो बस मुझे उसका लोगो मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहा। दिखा गोरे में बस। Yes, today. टुडे इवनिंग या Evening now. 7 o'clock. Direct. हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच गोरे में? 100 lira. 100. ओके Yes. एंड direct. टाइम Time was 7 o'clock start. Morning 6 o'clock Göreme. ओके। तो उधर एक बस है लीडर एल्बिस्तान, सॉरी एल्बिस्तान भाई बाल्तिस्तान बोल रहा हूँ। लीडर एल्बिस्तान है बस का नाम। वो लोग 100 टर्किश लीरा ले रहे हैं और यहाँ भाई मुझे यही दूसरा जो कंपनी है वो 150 ले रहा था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि जो लीडर एल्बिस्तान है वो सिर्फ कैश लेता है। मेरे पास कैश हो गया है ऑलमोस्ट ख़त्म, सिर्फ 30 टर्किश लीरा बचा है। मैं गूगल करता हूँ आसपास मनी एक्सचेंज कहाँ है, बिकॉज अब मैं एक बड़े शहर हूँ, मैं पामुकले में नहीं हूँ, मैं डेनिसले में हूँ। तो यहाँ पर ये बड़ा शहर है, यहाँ पर एक्सचेंज मनी एक्सचेंज होना चाहिए। देखता हूँ जो भी है एक्सचेंज कराता हूँ, फिर मिलता हूँ। यहाँ मुझे 9.44 का रेट मिल रहा है। 65 या 65। ओके पासपोर्ट ओके। रही बात करेंसी एक्सचेंज की, मुझे इस्तांबुल में सबसे ज़्यादा एक्सचेंज रेट दिखा था 9.27 का। मैं अभी डेनिसले में हूँ, यहाँ मुझे दिख रहा है 9.44 का। तो इससे मैं ये सीखा हूँ कि आप 10 जगह पहले इंक्वायरी करो, 10 जगह इंक्वायरी करो, आपको रेट हर जगह अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा रेट मुझे ज़्यादा मिल रहा है, तो जब आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान देना कि आप 10 जगह इंक्वायरी करो। भाई जब जेब में पैसे हो ना तो लगता है भाई अब मैं जंग जीत लूँगा। अब ब्रिंग इट ऑन बोलते हैं ना, ब्रिंग इट ऑन इंग्लिश में, मतलब ब्रिंग इट ऑन। ऐसा लगता है जेब में मेरे भी पैसे हैं, अच्छे खासे हैं,
मतलब टर्किश लीरा जो है करेंसी वो अब है मेरे पास, डॉलर्स तो ऑलरेडी है मेरे पास, बट अब मेरा जेब जो है वो भरा हुआ दिख रहा है। अब मेरे में एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया है। ये बात सच है भाई कि जब जेब भरा हो ना तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है। यू स्पीक इंग्लिश? I just want to know what is the, if a tourist wants to buy a SIM card, what would be the cost? New SIM card. Yeah, a new SIM card. So what is the plan? Data plan? 130 lira. हाँ. 15 gigabytes. Okay. या तो तुर्क टेलीकॉम का भी ऐसा ही है कि यहाँ पे मुझे 130 लीरा का 15 GB मिल रहा था। तो इससे मैंने ये सीखा कि इस्तांबुल में मुझे बेवकूफ़ बनाया गया था। तो मैंने इस्तांबुल में करीब 270 या ऐसा कुछ पैसा दिया था, तो बेवकूफ़ बनाया गया था। इससे मैं एक और चीज़ बोलूँगा, सिर्फ एक कंपनी, मतलब जो दुकान है सिम कार्ड का, वहाँ से मत लो, 10 दुकान ट्राई करो, वहाँ से आपको और नया चीज़ मालूम पड़ सकता है। तो दैट्स इट। अब आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं आपको एक ओवरऑल समरी दे देता हूँ क्या हुआ है अभी। मुझे जाना है अभी डेनिसले से गोरे में। गोरे में को एक्चुअल में कैपेडोकिया बोलते हैं, बट कैपेडोकिया बोलोगे ना तो कैपेडोकिया कोई समझेगा नहीं, तो सब लोग गोरे में बोलते हैं। मतलब गोरे में एक बड़ा पकड़ लो शहर है जहाँ बड़ा बस टर्मिनल है। यहाँ कुछ कंपनीज़ है जो 150 टर्किश लीरा ले रहे थे, लेकिन मैंने ऑनलाइन चेक किया था, एक वेबसाइट है ओबिलेट करके, ओबिलेट टर्किश वेबसाइट है। तो आप उसको हमेशा गूगल क्रोम या ऐसे ब्राउज़र पे खोलना जिससे आप उसको वेब पेज को ही आप ट्रांसलेट कर सको। तो उस पर लिखा था कि 100 टर्किश लीरा में एक कंपनी है, ये लीदर एल्विस्तान, 100 टर्किश लीरा में ये बस आपको ले जाएगी गोरे में। तो ऐसा करके मैंने कुछ पैसे बचा लिए। पामुकले जहाँ मैं थोड़ी देर पहले था, तो पामुकले से यहाँ आने मुझे लगे 5.5 टर्किश लीरा, और इसके लिए लगे मुझे 100 टर्किश लीरा, मतलब 105 टर्किश लीरा में मैं अब गोरे में पहुँच जाऊँगा। बस है शाम 7:30 बजे की, अब बज रहे हैं सुबह के 10। मेरे पास बहुत टाइम है, 7 घंटा है टाइम पास करने को। मैं जानबूझ के ये शाम की बस ले रहा हूँ क्योंकि शाम का बस है, तो मतलब रहने का मेरा खर्चा शाम का बच जाएगा। और बस में 2 बार खाना मिलता है, खाना मतलब स्नैक्स बेसिकली मिल जाता है, तो मेरा खाना का भी जुगाड़ हो गया। तो ये तरीका है जो मैं जुगाड़ से लगा रहा हूँ और अपना कुछ पैसे बचा रहा हूँ, और मैं इसी तरह ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट्स इट। अब मैं कुछ टाइम पास करता हूँ, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। अब जब बस लेंगे तब मैं शूट करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ऐसे बहुत से ट्रैवल कंपनीज है जिसका आपको डिटेल गूगल पे मिलेगा भी नहीं, उनका टाइमिंग भी नहीं मिलेगा, ना ही उनका प्राइस मिलेगा। तो अच्छा होगा कि आप ये जो बस टर्मिनल है वहाँ पर आए, सबसे बात करें और फिर अपना टिकट लें। बिकॉज मुझे ऑनलाइन पे पामुकले जो है वो दिखा, कामिल कुछ है वो दिखा, मेरा जो है लीडर एल्बिस्तान वो दिखा, बट यहाँ बहुत से कंपनी है, वारान है, मूरत है, बहुत सारे कंपनी है, मेट्रो है, जिसकी डिटेल ऑनलाइन नहीं है। तो हो सकता है कि आप ऑनलाइन अगर बुक कर जाओगे तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे शायद भर दोगे। तो अच्छी बात है कि पहले आप यहीं पे डायरेक्ट आओ, यहीं पे 2-4 लोग से बात करो, बार्गेन करो और फिर ले लो। बस टर्मिनल नंबर 13 6:45 राइट? ओके, थैंक यू। आपको ये बस टर्मिनल भी दिखा देता हूँ मैं कि कैसा है कैसा नहीं है। अरे एक बात और पूछ लेता हूँ कि मेरी बस डायरेक्ट है कि कहीं बीच में रुकना पड़ जाएगा? क्योंकि बीच में एक जगह आता है कोनिया, वो बड़ा शहर है, ऐसा ना हो कि बड़े शहर में पहुँचा है और फिर बोले कि नहीं अब बस चेंज करना पड़ेगा। भाई बस मेरी रात को चलने वाली है और मेरे को लफड़ा नहीं चाहिए। दिस बस इज डायरेक्ट राइट? Direct. It won't stop anywhere. No, direct here. Bus direct Göreme. गोरे में, not Nevşehir. No, Nevşehir. No, Göreme. गोरे में। ओके, थैंक यू। ओके, तो बस जो है वो डायरेक्ट गोरे में जाएगी, नेवशहर नहीं जाएगी। नेवशहर क्या है ये मैं आपको कैसे बताऊँ? कैपेडोकिया जो है ना ये बहुत बड़ा शहर है, इसमें नेवशहर भी एक है, गोरे में भी एक है, उच्चीसार एक है, ओरता हिसार एक है। ये सब आपको डिटेल में गोरे में पहुंचूंगा तब बताऊंगा। अब थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ, मेरा गोप्रो का बैटरी भी थोड़ा लो हो गया है, उसको भी चार्ज कर लेता हूँ और चलते फिर। और क्या
आपको इस बस टर्मिनल पे कुछ जगह पर चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, जैसे कि ये एक यहाँ पर भी है। मतलब जो स्ट्रक्चर पत्थर का बना है ना, वहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे। मेरा चार्जिंग पॉइंट यहाँ पीछे था, बट वहाँ पे एक अंकल ने उस जगह को कब्जा कर लिया और हिल नहीं रहे। कम से कम 2.5 घंटा हो गया है वो अंकल वहीं पे उसी जगह पे चिपके हुए हैं। लेकिन मुझे वहाँ बैठना था बिकॉज मुझे एक क्लाइंट को एक वीडियो भेजना है, तो सोचा वहाँ बैठ के भेज दूँगा, बट वो अंकल हिल ही नहीं रहे। तो बस यही चीज़ है। और बस टर्मिनल पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको ये एक कैफ़े मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जूस मिल जाएगा। ये कैफ़े का बैठने वाला एरिया है। यहाँ पे आपको ये एरिया मिल जाएगा जहाँ आपको ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा बर्गर टाइप मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ये मिल जा रहा है भाई, पीसीओ आज भी जिंदा है देश में। इंडिया में तो पीसीओ कब का बंद हो गया, बट पीसीओ है यहाँ पर। पीसीओ टाइप का, पीसीओ ऑफ कोर्स नहीं होगा। एटीएम से यहाँ पर, और यहाँ पर मसाज का चेयर भी है। यहाँ पर लिखा है 2 टर्किश लीरा पे मसाज मिल जाएगा। अंकल हिलो वहाँ से यार, मेरे को चार्ज करना है। मेरी बस जो है वो 13 नंबर इस पे आने वाली थी। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं ऐसा। यहाँ पे एक बस आती है, यहाँ पर एक बस आती है। मेरी बस 13 पे आने वाली थी 6:45 का। अब बज रहे हैं 7:10। मैं अंदर जाके बात किया जहाँ से मैं टिकट खरीदा कि भाई बस किधर है, तो बोला 5-10 मिनट में आ जाएगी। अब मुझे डर इस बात का लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बस यहाँ पर ना आए, कहीं और आ जाए। बिकॉज फ्लाइट में होता है ना कि किसी एक गेट पे आपकी फ़्लाइट आने वाली होती है, लेकिन अचानक वो गेट पे नहीं आती, दूसरे गेट पे चली जाती है फ़्लाइट। फिर अनाउंसमेंट होता है, आपको फिर वहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। जैसा बस टर्मिनल पे होता हो, तो अगर ऐसा हो तो भाई मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि एक तो यहाँ कोई बात करने वाला है नहीं, कोई मेरी भाषा समझता नहीं है, मैं किसी की भाषा समझता नहीं हूँ। पोपट ना हो जाए। आ गई मेरी बस, फाइनली आ गई भाई। मेरी जान अटकी थी, आ गई लेकिन बस। तो यही चीज़ था। अब देखता हूँ ये बस का मेरा एक्सपीरियंस कैसा होता है, बताता हूँ आपको मैं। तो मेरी सीट नंबर है 1313। देखते हैं कैसा रहेगा ये। ये बस का नंबर कहाँ लिखा होता है? 1313। ओके। तो बस का नंबर यहाँ लिखा होता है। भाई किसी ने तो इतना पीछे ले लिया है सीट। सीट तशक्कुर। तो यहाँ पर भी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए ये सब दिया हुआ है। यूएसबी यहाँ पर नहीं है। इस बस में यूएसबी पोर्ट नहीं है, लेकिन सीधा मुझे चार्जिंग का पॉइंट दे दिया है। तो मैं गोरे में पहुंच गया हूं और मैं आपको मेरा बस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। पूरे जर्नी में अंधेरा था, बस में भी अंधेरा था, इसीलिए बस से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। कुछ मतलब भी था नहीं रिकॉर्ड करके। एक्सपीरियंस ये था कि मैंने अभी तक टर्की में 2 बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस बस ली है। एक एवलिक से पामुकले और पामुकले से गोरे में। ये दोनों का मैं अगर कंपेयर करूं तो एवलिक से पामुकले जो मैं आया था वो एक कंपनी से आया था। वो बस की कंपनी का नाम था पामुकले। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैं 2 बार पामुकले क्यों बोल रहा हूँ। पामुकले एक जगह का नाम भी है, पामुकले एक बस की कंपनी का नाम भी है। तो मैं पामुकले पहुँचा था पामुकले की बस से। अब जब मैं पामुकले से गोरे में आया हूँ तो मैं आया हूँ लीदर एल्बिस्तान ये बस से। ये बस मुझे सस्ती पड़ी, बट भाई वो जो कॉस्ट का डिफरेंस था ना वो फील ऐसे हुआ कि ये बस इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। जो कंफर्टेबल सीट्स पामुकले की है ना वो इसकी नहीं है। पहली बात तो ये बस में खाना दिया नहीं गया।
पानी दिया गया, खाना मतलब स्नैक्स दिया नहीं गया, पानी दिया गया, वो भी मांगा तब, और यहाँ पे खाली कॉफ़ी दिया गया, वो भी 2 बार, बट स्नैक्स तो कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, दैट्स इट। ये बस में कुछ खास था नहीं, बट भाई प्राइस कम था तो ठीक है भाई, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, प्राइस अच्छी थी। अब मैं सोच रहा हूँ मैं जाता हूँ मेरे हॉस्टल, रिक्वेस्ट करूँगा भाई सिर्फ बैग रखने का जगह दे दे, शरीर से थोड़ा जो लोड है वो कम हो जाएगा, तो फिर अपन कुछ कर सकते हैं, कुछ टाइम पास कर सकते हैं। तो अभी चुपचाप हॉस्टल चलते हैं और फिर देखते क्या करना है। तो मैं मेरे हॉस्टल में हूँ अभी, और हॉस्टल में कोई नहीं है, आई मीन रिसेप्शन पे कोई नहीं है। मैं सुबह 5:30 बजे यहाँ पहुँचा और तब से मैंने ये एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है और मैं यहाँ बैठ के मेरा व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। सब कुछ चार्ज कर लिया, सारे मेरे मोबाइल के ऐप्स अपडेट कर लिए, सब कुछ हो गया। मैं आज सोच रहा हूँ कि आज मैं कहीं ना घूमूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे एक और दिन एक्सटेंड करने मिल सकता है, कि अगर 400-500 तक अगर ये लोग माने तो मैं एक दिन एक्सटेंड करूँगा। और आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारे ब्लॉग को एडिट करके ख़त्म कर दूँ। आज मैं सुबह से रात तक सोच रहा हूँ यहीं बैठूँ और सारे ब्लॉग एडिट कर दूँ। शाम को अगर मूड हुआ ना तो ज़रा बाहर अपन घूम के आएंगे, एक सनसेट पॉइंट करके, वो मैं घूम लूँ। और कल हम सुबह सोच रहा हूँ मैं कि मैं कैपिडोकिया एक्सप्लोर करूँ। तो ये मेरा प्लान है, लेट्स सी। अभी रिसेप्शन पे कोई अभी है नहीं, वहाँ लिखा है कि 8:30 बजे रिसेप्शन शुरू होगा। तो मैंने वाईफाई सब ले लिया, वहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड दिया हुआ है। लेट्स सी, बात करता हूँ और फिर उसके हिसाब से चीज़ को प्लान करता हूँ। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, मुझे ना यूट्यूब से बहुत एक्सपेक्टेशन है। मतलब इतना बड़ा ट्रिप है ना, मेरे पास फंड्स की कमी है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर यूट्यूब मेरा अच्छा चल गया ना, अगर आप लोग सपोर्ट किए तो कुछ फंड्स यहाँ से आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे लेकिन थोड़ा बहुत आ जाएंगे, जिससे मेरा एटलीस्ट मेरा जो खाना पीना पे एक्सपेंस हो रहा है वो मेरा कवर हो पाए। तो मैं सोचूँ आज बैठ के सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, सारा एडिट कर दूँ, और हर अल्टरनेट डे के लिए वीडियोस मैं शेड्यूल कर ही दूँ। तो लेट्स सी, आप लोग प्लीज़ मुझे इस चीज़ पे सपोर्ट करना, बिकॉज अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मेरा ये ट्रिप पॉसिबल है। यूट्यूब से मुझे बहुत उम्मीद है, यहीं से मेरा फंडिंग आने वाला है। तो आप अपने फैमिली को वीडियो शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, और दैट्स इट। आज एडिट करेंगे, चलते हैं।